Dear students, very good morning to all of you. This is Durgesh Pandey, your history teacher. Students, in my previous class, I had discussed about the Jati, social mobilities, and beyond the four Varnas. Students, there we had seen about the system of Varna, how the system and categories were divided on the basis of their birth, how the patrilineal systems worked among all the societies, and there is an exception regarding the Prabhavati Gupta. There we had seen about the matrilineal system of transfer of property. Students, now today I am going to discuss with you all the topic that is language and content and activation of Hastinapur. Dear students, this is the last topic of this chapter. I hope so. What I had earlier discussed in previous classes, you each and everything you had getting. Now students, without wasting our time, let me start our these topics as soon as possible. Students, language and content. Language and content. Language and content. Students, evidences through which we get information about the language. What were the evidences? Like Bhagavad Gita, Mahabharata. These were the texts during that time, and some texts which were related from the Buddha religions, Buddha text. From there we get information about the language. The evidences were about the evidences through which we get information. The language were used during that times. The language were Pali, Tamil and Telugu, Tamil and Telugu. After Sanskrit and Prakrit These were the languages which were used by the early society peoples during the Mahabharata era, during the Mahabharata times. But if we had seen in that time, then Sanskrit was more popular among the societies. The texts which were the sources about the knowledge of that era, they were usually written in Sanskrit. Like Bhagavad Gita, example, Bhagavad Gita, Mahabharata, these were the sources, these were the texts during that time which found easily they written in the Sanskrit language. The terms which were written that was the old Sanskrit. और ये सब old Sanskrit में लिखे गए थे. Old Sanskrit were much more difficult in comparison to the new Sanskrit. जो new Sanskrit है, when Padmini came in his book Ashtadhyayi, Padmini wrote a book. The name of that book was Ashtadhyayi. In Ashtadhyayi, he totally focused over the Sanskrit grammar. After the Sanskrit grammar invent, the things could be very easy. जो चीजें थी वो बहुत आसान हो सकी. उसके पहले मुश्किल था टेक्स्ट को पढ़ना. जो संस्कृत में रिटन थे, जो संस्कृत में टेक्स्ट हुआ करते थे, उनको बहुत मुश्किल था पढ़ना, क्योंकि वो आसान नहीं थे. वे सबकी समझ से परे थे. Sanskrit language were used in the Vedas also.
वेदास, अगर वेदों की बात करें, इन द वेदास द मोस्ट वेदास वर आल्सो रिटन इन द संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हुए थे वेद, जितने भी थे संस्कृत लैंग्वेज। ऋग्वेद, ऋग्वेद among all it is known as the first Ved and oldest Ved। ये सबसे प्राचीन वेद है। आफ्टर दैट सामवेद, यजुर्वेद and last one अथर्ववेद। अथर्ववेद, these all Vedas written in the Sanskrit form। ये संस्कृत में लिखे हुए थे। and something else like प्रशस्ति, वेद and प्रशस्ति। प्रशस्ति, अगर हम प्रशस्ति के बारे में बात करें तो प्रशस्ति के बारे में बात करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो सोर्सेस है वो कौन सा है, हमें गुप्ता डायनेस्टी में जाना पड़ेगा, जहां पर समुद्रगुप्त के बारे में चीजें लिखी गई थी प्रशस्ति पर, जो कि प्रयाग में स्थित है, जिसको प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति has been written by the Harisena। Harisena was the scholar under the time period of Samudragupta। He wrote each and everything about the Samudragupta in the Prayag Prashasti। Prayag Prashasti is totally devoted to the Samudragupta, and this Prashasti was also written in the Sanskrit। Okay, students, now we will discuss about the content। Content was two types during that time। Content were two types। If we will discuss about the content were two types। First, that was section, and second was dialectic। Section and dialectic, and dialectic। सेक्शन में होता आख्यान, इधर एक आख्यान से लिया गया है स्टूडेंट्स। एंड डायलेक्टिक मींस जो व्याख्यान, जो कि उपदेश के रूप में, इसके रूप में हो, उपदेश के फॉर्म में, उपदेशात्मक। यहाँ से स्टूडेंट्स देयर वर मेनी रूमर्स about that topics, section and elections। They said that nobody knows during that time how to write, nobody knows। Then how can these texts were written, कैसे इन टेक्स्ट को लिखा गया। तो इसके बारे में बहुत सारे हाइपरबोल भी है कि जो महाभारत टेक्स्ट है, जिसके कंपाइलर कौन है, कृष्णदेवराय वेद व्यास। Who were the compilers? Not writer, who were they? They were compiler of Mahabharata। Compiler of Mahabharata। Who were Krishnadevarai Vyas। Krishnadevarai वेद व्यास हुआ द कंपाइलर ऑफ महाभारत। वो बताया जाता था महाभारत को लिखने के लिए। अब जैसे महाभारत के बारे में जो भी स्टोरी थी, इसमें जो होता था तो चैरियट्स होते थे, जो रथ होता था, रथ को ड्राइव करने वाला जो चैरियट्स होता था, जिसको सारथी बोला जाता था। ऐसा कहा गया कि जब युद्ध लड़ा जाता था, जो वार होते थे, वार हेल्ड होता था among the two parties, between the two parties, who they were opponent to each other, जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे। उसमें होता क्या था कि जो सारथी होता था वो दृश्य को देख रहा होता था, तो जो चीजें होती थी वो डायलेक्ट फॉर्म में होती थी। किसमें होती थी? डायलेक्ट फॉर्म में होती थी।
उपदेशात्मक होती थी और ये हर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ओरली ट्रांसफर होती थी। इस प्रकार की बातें होती थी और कहा गया कि महर्षि जो द्वैपायन वेद व्यास जी ने जब महाभारत को लिखा तो इन्होंने क्या सुना था, उस चीज को सुना था, इनके बारे में श्रुति थी। जो टेक्स्ट होते हैं, जो वेद होते हैं, वेद हमारे कितने प्रकार के हैं? 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इन श्रुति एंड सेकंड इन स्मृति। श्रुति एंड स्मृति। श्रुति मीन्स क्या होता है? सुना हुआ। स्मृति मीन्स होता है मन में बसा के लिखा हुआ। श्रुति एंड स्मृति 2 फॉर्म में है हमारे वेद। एंड कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के बारे में कहा था कि जब इन्होंने इनको कंपाइल करना शुरू किया तो ये ओरली एक्सप्लेन डायरेक्ट करते गए, ये उपदेश देते गए, ये बताते चले गए और इसको जो लिखने का काम था वो किसने किया? गणेश जी ने लिखा। लॉर्ड गणेशा write all the Vedas, महाभारत एक्सेट्रा। लॉर्ड गणेश ने कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास की सहायता से सभी वेदों को, उपवेदों को और जितने भी टेक्स्ट हैं इन सबको लिखने का काम किया था। वेद व्यास जी ने वहां पर एक्सप्लेन किया था बोलने और इन सभी लोगों ने इनको, गणेश जी ने इसको लिखा था। ये हाइपरबोल हो सकता है, गणेश जी ने लिखा होगा। एक श्रुति के बारे में हम बता सकते हैं, लेकिन ये हाइपरबोल की तरफ से ही लिया जाए। बिकॉज इन ऋग्वेद when the ऋग्वेद written over there, तो इसमें कितने थे? इसमें 1028 श्लोक थे, मंत्र थे। ओके, और ये 10 मंडल्स थे। ऋग्वेद में कितने मंडल्स थे? 10 मंडल्स। Each and every mandal devoted by the some rishis. Like the mandal third has been written by the compiled by the Vishwamitra. मंडल का यानी ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना किसने करी थी? ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने करी थी। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किस चीज की व्याख्या हुई है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री देवी की बात हुई है, गायत्री देवी। और ये जो गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हुआ है। स्टूडेंट्स, अगर हम महाभारत के टोटल्स बात करें तो शुरुआत में इट स्टार्टेड, जब लोगों ने इसे सुनाना शुरू किया, जो सारथी के साथ के लोगों को बताना शुरू किया, इन द बिगिनिंग इन महाभारत, beginning near about 10,000 verses. 10,000 verses होते हैं। जब महाभारत लिखा गया तो महाभारत में वर्सेस की संख्या कितनी थी? मंत्रों की संख्या कितनी थी? 10,000 थी। आफ्टर दैट इट विल बिकम, व्हेन द कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास कंपाइल्ड इट, then it will become near about 1 lakh. 1 lakh. वर्सेस। जब 1 लाख वर्सेस हो गए महाभारत में तो इसको सप्त संहिता बोला गया। संहिता यानी सप्त संहिता भी बोला गया। फारसी में भी इसका जो अनुवाद हुआ फारसी में इसको बोला गया रजमनामा। महाभारत को रजमनामा कहा जाता है, किसमें? फारसी लैंग्वेज में। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ आई होप सो दैट ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर बाय द प्रोसेस ऑफ टाइम। ओके स्टूडेंट्स, now we will discuss about the historian tells about Mahabharata, that the Mahabharata is a dramatic moving story. Historians tells about the Mahabharata, that is the Mahabharata is the dramatic moving story. Moving story. Authors and dates. The next topic will be authors and dates. Authors and dates students. अगर हम author और dates के बारे में बात करें, Kuru and Panchals, they were neighboring countries. When the Swayamvar organized by the Panchal Naresh Drupad
नरेश, पांचाल नरेश, द्रुपद, ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइज, पांचाल नरेश, द्रुपद ऑर्गेनाइज स्वयंवर for his daughter, Draupadi, for his daughter Draupadi. In this, what happened? In the Swayamvar, the many kings and many emperors take participation in that Swayamvar, but Arjuna got married to the Draupadi. Arjuna got married to the Draupadi. In that Swayamvar, Arjuna married to Draupadi. But कहीं कहीं पर यह सुनने में आ जाता है कि when Arjun come back with the Draupadi into his house, he said to his mother, माँ देखिए हम आपके लिए कुछ लाए हैं। तो उधर से कुंती ने जो आवाज करी, आवाज कुंती का क्या था कि जो भी लाए हो आप सभी लोग पांचों में बांट दो। अब यहाँ पर जो हमको देखने को मिल रहा है वो क्या देखने को मिल रहा है? एक तरफ माँ का आदेश है, उस आदेश का पालन भी करना है, उस आदेश का पालन भी करना है। दूसरी तरफ देखा गया ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के द्वारा जो ब्राह्मण थे उनके वो जो उपदेश थे उन्होंने इसके बारे में क्या रेफरेंस दिया। तो जो द्रौपदी के उपदेश को, कुंती के उपदेश को किसने माना? अर्जुन और उनके भाइयों ने माना, द्रौपदी ने माना। बट ब्राह्मण्स ने क्या कहा? द्रौपदी से ब्राह्मण्स ने, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट ने कहा कि देखिए ये आपके नसीब का खेल है, आपकी तो शादी 5 लोगों से होनी है, क्योंकि पिछले जन्म में आपने कई बार पति 5 बार पति का आह्वान किया था, इसलिए इस जन्म में आपको 5 पति मिले। तो जो ये पॉलीगैमी सिस्टम था जिसमें बहुपति विवाह था, बहुपति विवाह का प्रथा था, ये बहुत ही बेकार था। ये सिस्टम बहुत बेकार था, उसको अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लिया जाता था। ऐसा भी देखने को मिला हमें वहां। The original story was probably composed by the charioteers between 200 to 400 CE. Between 200 to 400 CE, the Dharmashastra 200 BC to 200 CE, the Dharmashastra like Manusmriti written over there. Manusmriti written. मनुस्मृति कब लिखी गई? जो 200 से 200 BC से लेकर 200 CE तक का जो समय है, 200 बिफोर कॉमन इरा से 200 कॉमन इरा तक का जो टाइम पीरियड है, इसी के बीच में मनुस्मृति की रचना हुई। और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते थे ड्यूरिंग दैट टाइम इन दैट सोसाइटी, ईच एंड एवरी रूल्स एंड रेगुलेशंस वर द पार्ट ऑफ मनुस्मृति, वो मनुस्मृति के पार्ट होते थे। A text which initially perhaps had less than 10,000 verses, later its pure comprised 1 lakh verses. क्या हुआ? इसमें कही हुई बातें जो थी इतनी उद्धृढ़ हुई, इतनी सामने है, उसमें क्या हुआ कि महाभारत में
महाभारत में जो वर्सेस की संख्या हो गई फ्रॉम 10,000 टू 1 lakh, from 10,000 to 1 lakh verses it becomes in महाभारत वर्सेस। ये कैसे हुआ? ये फेंक के हुआ, ये दूसरे से क्या करके हुई है? जो गाय जो पदार्थ उपदेशात्मक भाव होते थे, डायलेक्टिक मीडियम होते थे, दो मीडियम ऑफ सेक्शन एंड डायलेक्टिक मीडियम में उपदेश के रूप में जितनी चीजें कही गई, कविता के बारे में कही गई, जो सारथी होता था अपने राजा का बखान करता था, अपने राजा की बड़ाई करता था, जिससे इन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सकवेशन ऑफ हस्तिनापुर स्टूडेंट्स। एक्सकवेशन ऑफ हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर first student we would like to know where the Hastinapur the region between the Meerut and Delhi। मेरठ का जो क्षेत्र था इसी को हस्तिनापुर कहा जाता था, और उसके बाद जो दिल्ली का रीजन हुआ करता था उसको इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। Who excavated this site? The Hastinapur site excavated by the B.B. Lal. B.B. Lal, the excavator of Hastinapur, he excavated it in 1951 to 1952. Between 1951 to 1952, he excavated the Hastinapur. Students, he excavated the Hastinapur. Lal found evidences of the 5 occupational levels. Here, B.B. Lal found 5 types of occupational level students. 5 types of occupational level. Polyandry, one of the most challenging episode in Mahabharata, is Draupadi marriage with the Pandava. Polyandry was the most challenging episode in Mahabharata, where Draupadi married with Pandava. Students, practice of polyandry may be seen unusual or even undesirable from the Brahmanical point of view. Practice of polyandry practice of polyandry
unusual according to grammatical text, grammatical text, students, and Brahman's point of view. शॉर्टेज ऑफ वुमेन्स, ऐसा भी कहा गया कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में इसका अपोज किया, इसको अनयूजुअल टास्क बताया। ऐसा कहा गया कि बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वुमेन्स, ऐसा देखा जाता था, ऐसा माना जाता था कि हो सकता हो कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम इसलिए डेवलप हुआ हो। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वुमेन्स, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ women in the society। ये भी देखा जाता था कि जो लैक ऑफ वुमेन्स है, इसके कारण से भी जो पॉलिटिकल सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता था कि जो महिलाएं होती थी वो एक से ज्यादा पति के साथ रहती थी, एक से ज्यादा पति के साथ रहती थी पॉलिटिकल सिस्टम में। इसके बारे में ब्राह्मणिकल टेक्स्ट ने जो सपोर्ट किया, वो सपोर्ट ये किया कि हो सकता हो कि सोसाइटी में महिलाओं की कमी रही हो, शॉर्टेज ऑफ वुमेन्स इन द सोसाइटी, सो दैट्स व्हाई दीस काइंड्स ऑफ मैरिज सिस्टम हेल्प अमंग द सोसाइटी। स्टूडेंट्स, महाभारत इज अ डायनेमिक टेक्स्ट। महाभारत वाज रिटन इन वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। महाभारत is a dynamic text Mahabharata was written in variety of languages. It was written in variety of languages जैसे अभी 3 लैंग्वेज, संस्कृत के बारे में बताया मैंने, हिंदी के बारे में बता दिया और पारसी के बारे में बता दिया, जो इसमें रंजनामा इसको पा गया। इंग्लिश में भी इसका हुआ है variety of language. Those people who wrote version of the epic added stories originated and circulated in their own localities. और जिस लैंग्वेज में ये लिखी गई है, उसमें जो राइटर होगा वो अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ स्टोरीज और ऐड कर देता है और कुछ ना कुछ चीजें और लिखता होगा जो अपने सोसाइटी को समझ में आए, अपने लैंग्वेज में यूज उनको समझ में आए। कुछ अपने लैंग्वेज को इस प्रकार से यूज करता होगा जिससे उनको ये वो लैंग्वेज समझ में इजीली आ जाए। So with this statement I am going to end this chapter here. We will meet in next class with the next chapter. Thank you students, thank you very much.